Rahman Rahim. Alam nashra laka sadrak. Wama da'ana anka wizrak. Allazi ankhada zahrak. Wa raf'ana laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa iza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. अब्बास मेरे को आप प्रेजेंटर बना सकते हैं प्लीज। ओके ठीक है। बना दिया। ओके जी एक मिनट। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को अभी? जी हाँ, दिख रहा हूँ। जी 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 पीपीटी है। हाँ पीपीटी दिख रहा है ना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Alam nashra laka sadrak. Did we not expand for you your breast? Allah subhanahu wa ta'ala gave knowledge and deep understanding of his message, which his beloved messenger and prophet had to convey to humanity. There is mention about this same phenomena of expansion of the breast in Surah 20:25, when Hazrat Musa asked for his breast to be expanded, and when he was given the responsibility to face the Pharaoh and lead his people out of Egypt. Basically, this expansion of the breast means the confidence and the determination which a person feels when he is faced with a very daunting challenge. सामने जब जो है बहुत कठिन और बहुत मुश्किल काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ती, तो जो है इंसान के अंदर एक डिटर्मिनेशन जागता कि जो है उसको कैसा ओवरकम किया जाए। तो दैट जैसा जो डीप सांस लेके जो है काम के ऊपर लगता है इंसान, वो अल्लाह की तरफ से जो है अता जब किया जाता तो जो है वो इंशाल्लाह सक्सेस की तरफ जो है बढ़ जाता इंसान। मगर अल्लाह की तरफ से जो है वो बात आती। और जो खूबसूरती है, जो वैलिडेशन है कुरान के अंदर, हर चीज़ का जो है एक मिरर रिफ्लेक्शन कहीं और भी रहता। वैसे जो है अल्लाह ताला जो है सेज कि जो है when Allah desires to guide someone, he expands his breast to Islam. And when he desires to misguide someone, he makes his breast narrow and constricted, as if he were climbing up into the sky. This is how Allah defiles those who have no faith. ये सूरह अनाम की जो है 125th आयत है। तो इंसान के जो है जो अंदर से हौसला जो है comes from this expansion of his breast, basically his chest. तो इंसान के अंदर जो है एक जब उसके अंदर जो है ईमान जागता, तो उन्हें जो है अपनी एक अंदर से जो है एक लाइट और एनलाइटनमेंट आती है उसके अंदर, जिसकी वजह से उन्हें जो है हर चीज को सही पिक्चर और सही पोजीशन के ऊपर देखना शुरू करता। ववा दाना अनका विजरक, and we remove from you your burden.
विजरक मतलब जो है एक 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 जो एक बोझ था, एक बोझ जो है उसको जो है अल्लाह ताला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उनके दिल पे से जो है हटा दिए। तो ये जो देर आर अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग पैरेलल्स बिटवीन रसूलुल्लाह अकरम और जो है हजरत मूसा के बीच में इन दिस केस। जो बोझ था काफी जो है जो कमेंटेटर्स हैं उन लोग ये बोझ को जो है दे हैव डिफाइंड इट एज some misdeeds, minor misdeeds, which the Prophet had done previously in his life, which Allah Ta'ala जो है excused or pardoned, or some other things. But this just goes to show how shallow our commentators are themselves. उन लोग भी जो है अपने एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ जो है फुलफिल करने के लिए कुछ भी वेज एंड मीन्स का जो है जरिया लिए, whereas that is clearly not the case because he was completely what you call blemishless, without any blemish right from the beginning. There was never an instance of any blemish on the character or person of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam right from the beginning of his life. एक इम्पॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि जो है द रसूल ऑन वन साइड वाज कनेक्टेड विद अल्लाह सुब्हानहू ताला, एंड ऑन द अदर साइड he had in front of him all people known to him like his near family, the Hashemites, who were the uh, aristocrats of Makkah, and they were all high and mighty of Makkah, and they held Rasul in very high esteem before he actually announced his prophethood. मगर जैसा ही जो है उन्होंने अपनी prophethood अनाउंस किए तो उन लोग जो है उनको जो है इतना उनके सोशल पोजीशनिंग में और उनके जो है क्या बोलना चाहिए उनके जो नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स थे उनमें जो है इतना अफरा तफरी मच गई कि वो जो सब उनके ऊपर न्योछावर होते थे और उनके ऊपर मरते थे वो उनके जानी दुश्मन बन गए. And at the same time, he had a big responsibility to take them and guide them out of क्या बोलना चाहिए from where they were into towards the right path. So it was a big responsibility. On one side, he had Allah, who was big support, and on the other side, he was under constant threat and क्या बोलना चाहिए जानी दुश्मन बने हुए थे सामने लोग उनके. तो and he, instead of returning that same sentiment or feeling towards them, he was actually trying to guide them away from their destination, which was otherwise going to be hell. तो उनका प्रेडिकमेंट समझना चाहिए कि जो है कितना जो है क्या बोलना चाहिए डेंजरस और कितना जो है टफ पोजीशन था उनका. अब जैसा जो है कोई जानता कि जो है एक फ्लाइट जो है क्रैश होने वाली है और वो फ्लाइट के ऊपर बोर्ड कर रहे हैं लोग जो है करीबी रिश्तेदार हैं, वो फ्लाइट के ऊपर बोर्डिंग चल रही है और वो उन लोग को रोकना है वो फ्लाइट के ऊपर मत बोर्ड करो बोल के. उन लोग को नहीं मालूम, जो फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं लोग उनको नहीं मालूम कि जो है ये फ्लाइट जो है क्रैश होने वाली है, और उन लोग समझ रहे हैं कि जो इंसान जो उनको वार्न कर रहा है उन्हें जो है उन्हें दीवाना हो गया और पागल हो गया कि उन लोग को रोक रहा है. तो आई थिंक दिस इज द एनालॉजी which we can give to a prophet. He knew what was going to happen to these people who were going to board that plane, and he was trying to save them from dying in that plane which was destined to crash. मगर
the prophet was very, very focused on his message. He was a special emissary of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah Ta'ala जो है took it upon himself to protect him from all the threats which existed out there. हर तरफ से जो भी दुश्मन उनके ऊपर वार जो कर सकता था या और करना चाह रहा था, उससे जो है रसूल को जो है अल्लाह ताला बचा के रखे थे. रसूल जो है सिर्फ उन्हों कोई मसलमान नहीं थे, उन्हों जो है क्या बोलना चाहिए, he was completely focused on his own message to be conveyed without bothering or caring for his own security. The whole security responsibility was entrusted to people who from time to time Allah Ta'ala put in place. Like Bibi Khatija, when she came into the life of Rasul, all his financial burdens were completely wiped out. And Hazrat Ali alayhi salam, जो है जब came into the life of Prophet, he was of course born in Kaaba, and he's a very special personality and a tool in the whole propagation of Islam, because he almost single-handedly wiped out the enemies of Islam, right from Uhud and Badr and Khandaq and Khaybar. But if not for him, Islam would not have found the going so easy. और जो है काबा में जाके जो है पूरे बुतों को तोड़ना रसूल के साथ, और हर किस्म की जो है जो चैलेंज आया था इस्लाम के प्रोपगेशन के रास्ते में, उन्होंने जो है इस रसूल का साथ दिए और उनके आगे जो है शील्ड बन के ठहरे हुए रहे. तो वन हैज टू अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ हजरत अली clearly to understand how Islam actually came to us the way it did. Now, there is this interesting word wizrak. Wizrak मतलब बोझ, एक responsibility है, और ये विजरक से जो है वजीर का वर्ड डिराइव होता. और जो है हजरत मूसा जो है अल्लाह से दुआ करते, in I don't know which surah it is, but it is there, कि मेरे भाई को मेरा वजीर बना. क्योंकि हजरत मूसा जो है उन्होंने अकेले फिरौन के पास, सूरह ताहा के पास, जी सूरह ताहा में, तो हजरत मूसा हजरत हारून को जो है अपना वजीर बनाने की दुआ करते अल्लाह ताला से. एंड सिमिलरली इन दावत जुलशीरा जो है रसूल अकरम जो है अनाउंस करते कि जो है आज मेरे मिशन के अंदर मेरे साथ जो आएगा और मेरे जो है मेरे हाथ से हाथ मिलाएगा, वो जो है मेरा वजीर होगा इस दुनिया में और आखिरत में भी. एंड उनके पूरे जो दावत जुलशीरा में जो अखरबा आए थे, उनमें से किसी ने भी जो है ये बात को सीरियसली नहीं लिया, और तीन बार इनविटेशन गया था, एंड ओनली हजरत अली अलैहिस्सलाम जो है सामने आए और पहल करे. और फॉर्मली जो है ही वाज अनाउंस्ड द वजीर ऑफ द प्रॉफिट इन दावत जुलशीरा द फर्स्ट टाइम publicly. तो ये विजरक जो have we not removed from you your burden, जो जिसका जिक्र है, I think the biggest indication or pointer is towards Hazrat Ali. It is not towards some lack of knowledge or sense that the Rasul had, which were wiped out through this one ayat. Allazi ankhada तहरक. तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. इट्स नॉट इजी एट ऑल. अब जैसा सोचिए कि जो है
एक कुफार का एक जो माहौल था, उसके अंदर पूरे जो है डिफरेंट पिकिंग ऑर्डर्स थे। टॉप के लीडर्स, उनके नीचे उनके लोग, उनके फॉलोअर्स, बिजनेस के अंदर हर जगह अपना हाथ पड़ा हुआ था उन लोग का। और मक्का वाज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो वहाँ पे जो है लोग आते थे जो है तवाफ करने के लिए काबा का, मगर जो है साथ में जो है इतने बहुत से जो है चीज़ें चल रहे थे वहाँ पे। एक्सेप्ट फॉर वर्शिप एवरीथिंग एल्स वाज हैपनिंग। जैसा आजकल का तिरुपति है वैसा है वो। तो तिरुपति में जाके जो है कोई अगर बोले कि जो है ये पूरा बुत परस्ती जो है हराम है, ये हक नहीं है, और इट नीड्स अ ह्यूज चैलेंज। वो लोग जो दोस्त और जो है मददगार पहले हुआ करते थे, वो सब दुश्मन बन जाएंगे एक दिन के अंदर किसी के। तो इट वाज अ ह्यूज चैलेंज टू प्रोपगेट इस्लाम। इट वाज नॉट एट ऑल इजी। हर किस्म का अटैक हुआ रसूल के ऊपर। और रसूल के ऊपर सबसे बड़ा जो चैलेंज था was to convey the message to people he wanted to save, and those people wanted to kill him. They wanted to eliminate him because their positions in the society were being endangered because of Islam coming in. अब जैसा एक इमिग्रेशन की क्यू जो है एयरपोर्ट के ऊपर रहती, मैं देखता हूँ कि जो है जब सौ लोग एक इमिग्रेशन क्यू में है, एक नया काउंटर खुला, तो जो है वो लोग जो है दूसरे जो है वो दूसरे काउंटर के ऊपर जो जाना शुरू करते लोग, ये दोनों के अंदर, ये दोनों क्यूज के बीच में जो है एक किस्म की जो है क्लैश होता है, एक पर्सनालिटी क्लैश होता। वो जो लोग जो नए क्यू में, इमिग्रेशन क्यू में जाके जो है ज्वाइन करते, दे आर लुक डाउन अपॉन। मगर देखते कि जो है इमिग्रेशन वहां से तेज होना शुरू हो जाता, फिर हल्लू जो है, ये बड़ी क्यू जो है छोटी होना शुरू होती। तो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग विद द launch of Islam in Makkah. وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكَ, and raised high for you your repute. Allah subhanahu wa ta'ala is most affectionate and loving to all his creatures, and most so to the best and the highest of his prophets that had ever graced humanity. He is referred to as Muzammil and Mudassir in the Quran. His zikr is encrusted in azan and our shahada. Nobody can enter Islam without taking his name. And anybody who doesn't love and give ultimate respect to him and his progeny would commit a sin, even if he does everything else that Islam says. तो एक ये बहुत बड़ी मेहरबानी है रसूल अकरम के ऊपर अल्लाह की तरफ से कि जो है हर वक्त के लिए अल्लाह के साथ जो है रसूल का नाम आता। चारों तरफ दुनिया में जो है 24 आवर्स अज़ान चलते रहती, और जो है रसूल का नाम जो है सरबलंद रहता वहाँ पे अज़ान में। और इतने हजारों लाखों लोग जो है हर वक्त उनका नाम लेते। और कोई भी अगर जो है रसूल का नाम के साथ जो है जरी भी बेहुरमती करे, लाखों करोड़ों लोग जो है ऑब्जेक्ट करते। तो दिस इज अ ह्यूज व्हाट यू कॉल benevolence from Allah towards his prophet. فَإِنَّ مَا الْأُسْرِ يُسْرًا, for indeed with hardship will be ease. This is again a very unique verse. This is, I think, there are only two such places in the Quran where there is repetition of the verse. Inna ma'al usri yusra. Indeed, with hardship will be ease. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. So when you have finished your duties, then stand up for worship.
तो ये बहुत डीप मीनिंग है। फ़इन्ना माल उसरी युसरा। उसरी मतलब जो है हार्डशिप, युसरा इज कंप्लीट रिलीफ फ्रॉम द हार्डशिप। तो इंसान के लाइफ के अंदर जो है देयर आर साइकिल्स ऑफ हार्डशिप्स एंड ईज विच आर गोइंग ऑन कॉन्स्टेंटली। जैसे जब तक जिंदगी है, जिंदगी में चैलेंजेस हैं, बट द अल्टीमेट युसरा for man is the hereafter, where there is complete ease from all these challenges। जैसा जिंदगी में जो है काम करना, जिंदगी में challenges face करना, जिंदगी में जो है हर किस्म का अटैक बर्दाश्त करना, and to make his life through his this world and then face the ultimate pain of death and then go to the hereafter। वहाँ पे युसरा मौजूद है उसके लिए, but it comes with one condition. It is a conditional. That condition is to stand up and worship। इंसान जो है जब तक जो है अल्लाह ताला की इबादत अब शामिल नहीं कर लिया अपनी ज़िंदगी में completely, और उसको जो है उसके ऊपर completely तवज्जो नहीं कर लिया, उसको युसरा जो है हासिल नहीं हो सकता, ये दुनिया में भी और ये दुनिया के बाद भी। और ये दुनिया के बाद जो है जन्नत का जो इंसान तसव्वुर करता है कि जो है वहाँ पे ये होगा वो होगा, वहाँ पे मेरे ख्याल से जो है अल्लाह ताला जो है उनका हर जो है अ, उनका क्रिएशन, उनका जो है वजूद इतना वाज़े हो जाएगा इंसान के ऊपर कि जो है इंसान जो है जो सोचता कि जो है खाऊंगा पीऊंगा ये करूंगा वो करूंगा, उससे ज्यादा जो है उन्हें सिर्फ घुटनों के ऊपर गिर के सिर्फ उसकी अल्लाह की इबादत करने में महव हो जाएगा। जैसा जो है एंजल्स, जैसा जो है अल्लाह ताला जिक्र करते कि कुरान के अंदर कि उन लोग दिन तमाम रात तमाम हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में लगे हुए रहते। इंसान की भी हालत वैसी हो जाएगी वहां पे जाके, जो है उन्हें जब देखेंगा कि अल्लाह ताला की जो है हकीकत क्या है, उसकी आंखों के ऊपर से जब पर्दा हटेगा तो उन्हें जो है घुटनों पे गिर के सिर्फ और सिर्फ इबादत में लग जाएगा। उन्हें जो इतने जो है जो कुछ उसके साथ हो सकता था और जो नहीं हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसका मेजर मेजर जो है टाइम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत के अंदर ही सर्फ होगा। हर चीज दूसरी चीज जो है उसके लिए छोटी पड़ जाएंगी, वो इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो सिग्निफिकेंस। And to your Lord, wa ila rabbika farghab, and to your Lord direct your longing। During our salat, we must open our heart and mind to our Lord, and He will calm us down and repair us mentally and physically। Salat is we speaking to Allah subhanahu wa ta'ala, and reading Quran is Him speaking to us. Both are essential forms of worship. Those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and whose hearts find rest in the remembrance of Allah, verily in the remembrance of Allah do hearts find rest। इंसान जो है हर चीज अगर हासिल करके सिर्फ जो है अल्लाह ताला की तरफ जो है नहीं पलटा, उन्हें कभी जो है सुकून हासिल नहीं कर सकता। उन्हें कितने भी बड़े घर में रहने दीजिए, उन्हें कितनी भी बड़ी गाड़ी में सफर करने दीजिए, उसके जो है फैमिली में कुछ भी जो है कॉम्पोजिशन होएगा लोगों का, और जो है अलग अलग जो है उनके अचीवमेंट्स होंगे, हर चीज जो है हॉलो है, खोखल है, विदाउट द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब तक के जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो है दखल और उसकी याद अपनी जिंदगी में नहीं रही, सुकून हासिल हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। The important takeaways from this surah:
though the communication with Holy Prophet is very intimate, it is applicable to us also. ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो है कम्युनिकेशन डायरेक्टली रसूल अकरम के साथ हो रहा है ये सूर्य के अंदर, मगर why is it being shown to us, why is it being exposed to us or informed to us? It is because whatever Allah subhanahu wa ta'ala is telling the prophet is equally applicable to us. Each of this verse is applicable to us. The work that was commenced with the Holy Prophet is still going on, and our Najat and Baqa is only in actively continuing with the same. We must not think it is not our responsibility to just follow Islam and not do tabligh passively and actively as the situation demands. अपन जो है सिर्फ खुद को जो है मुसलमान करार दिए और जो है नमाज और रोजा और कुरान पढ़ना शुरू कर दिए, that is not enough. We are all ambassadors of Islam. We have to speak and present the truth of Islam as and when possible. We should not stay away from this responsibility and think that we'll be saved. It's not possible again. We have to uphold Islam in our life and become examples for others to consider adopting Islam. Not only should we do regular worship, but also to explain its importance to all near and dear ones. क्योंकि अपने माशरे में जब तक अपन इस्लाम को जो है प्रैक्टिकली जो है रोल आउट नहीं करे, इम्प्लीमेंट नहीं करे, तो जो है जब तक अपना माशरा जो है हेल्दी नहीं हो सकता, अपनी लाइफ जो है इनकम्प्लीट रहती. Islam was launched as an unstoppable force against all odds as per the grand design of Allah subhanahu wa ta'ala. The entire story of humanity changed then onwards. It is still ongoing and we must help its cause actively. रसूल अकरम जो है आए, इस्लाम जो है अपन को दिए और चले गए, that's not the end of Islam. Islam is still ongoing. Islam जो है, the story continues. इस्लाम जो है when it was, of course, पहले दिन से जो है इंसान की खिलकत के साथ एक ही मजहब था और वो था इस्लाम. इस्लाम was relaunched with रसूल, and जिस तरह से जो है लॉन्च किया गया in a brief span of just 22 years, इतनी जो है बड़ी फोर्स लॉन्च की गई ह्यूमैनिटी में, तो इसको अप्रिशिएट करना और इसको समझना बहुत जरूरी है इंसान को कि जो है इट वाज ऑल ऑर्केस्ट्रेटेड. It was not something by accident. It was all intelligently orchestrated as per a grand design. जिस तरह से जो है against all odds जो है इस्लाम की तबलीग हुई, इस्लाम जो है not even 1% of Makkah, people of Makkah were followers of Islam. उसके बाद जो है the way it became an unstoppable force and everybody had no option but to come on to Islam, this has to be understood. All those who aligned themselves with the cause of Islam and fought for it and gave away their lives for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala are our role models and must be emulated. इस्लाम में जो है आज we are extremely fortunate कि जो है अपन आज खुद को मुसलमान बोलते हैं और जो है अपने पास एक किताब है which is the guide to the hereafter, in this world and the hereafter. मगर ये जो है अपने पास जो है बहुत ज्यादा कुर्बानियों के पास बात पहुंची. सो ये पूरा मजहब और ये जो किताब अपने हाथों को आया, it has come at the cost of a lot of lives. अपन जो है उसको जो है आसानी से डिसरिगार्ड करके जो है एक एस्पेक्ट में महदूद करके नहीं रख देना है अपनी लाइफ में. वी शुड ऑल्सो completely give ourselves to Islam, the cause of Islam.
Islam is superior to everything else that we own or claim in our lives. इस्लाम के सामने हम कुछ भी नहीं है. If we don't serve our life for Islam, then we are of no value and no good. Intense and regular worship of Allah subhanahu wa ta'ala is key to taqwa and to overcome all worldly challenges. जब तक कि इंसान जो है completely उसकी फितरत के अंदर ही है कि जो है इस्लाम इज इनबिल्ट इन हिज फितरत, इन हिज बेसिक नेचर. जब तक के जो है इस्लाम को जो है completely एडॉप्ट नहीं कर लेता इंसान, उसके अंदर से जो है एक इनकम्प्लीटनेस और एक जो है वहशत जो तारी रहती है इंसान को अंदर से बाय डिफॉल्ट, अगर उन इस्लाम पे नहीं रहा वो जा नहीं सकती. जी, आई एम डन.